country. We had joining the border with Thailand, Laos, and Laos. Okay. Three border is connection with us and Cambodia. Okay. 19. So which is very bad time for Cambodia that they was kill local people, 2.5 million people during the time. And most of the people that got killed during the time, those are the quality of people, teacher, professor, doctors, nurse, and others. And Cambodia, we started to be better time in year 1993, which is the country start convert to democracy. So start from that time to now, every 5 years we do one election. Okay. Yeah. So the country is growing by 3 sectors. Okay. Agriculture is number 1. Okay. Factory is number 2, and tourism is number 3. Okay. According to agriculture, number 1, we crop a lot of rice, cashew, cassava, and factory we have textile, and tourism is number 3. According to the tourism number 3, because we got COVID and then we come back very slow, and after that a little bit better, and then we got conflict and tourist is afraid, not like, yeah, people come here, they need peace. So, but still okay now, everything is fine. And people in the Siem Reap city here, main job for us related to the tourism sector. Okay. We have a job like as a tour guide, driver, hotel staff, restaurant, and other activity related to tourism. Yeah. And we are like in Siem Reap here, which is many things for visiting also. That we have such as Angkor Wat, Angkor Thom, Thap Prom, and the other temple. It's a main tourist spot. Especially we have like 1,000 Shiva Linga along the river. When the water pass by, the holy waters, when the water pass by 1,000 linga, it came to be a holy water. So otherwise we call Holy river. Okay. Right. Nam Kulin National Park. And we also have like the lake that you can see people live on steel houses, crocodile farm fish, and other activity. So how long did you stay here? We are here for Very nice. And I have heard that, brother, there is also a gun shooting range. People have for fun, for gun shooting. Not accepting now. Not here. Okay. In Phnom Penh, yes. Phnom Penh, yes. Okay. But I'm not sure about the condition now because very hard. Okay. Because we can see the peace at the border currently. Okay. That kind of procession is running or not, we are not sure. Okay. And something you like to tell to be little beware, or maybe some awareness, or any like tourist scam going on or anything like that, or everything is fine here? You just have enjoy and have a good time? Yes, no problem. Okay. In Siem Reap city here, not close to the borders, which is 2 or 3 hours away from, it's no problem. Okay. So that's a great information, and thank you for your wonderful time. Now let me translate it for some of my audience in Hindi in my own language, so they can understand it better. Thank you so much. So भाई का कहना है कि 3 कंट्रीज का लगता है, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया का, और उसके बाद कंट्री ने थोड़ा ग्रोथ करना शुरू किया। मेन 3 चीज़ों पे एक कंट्री की मेन इकोनॉमी है, एक एग्रीकल्चर, दूसरा फैक्ट्री प्रोडक्शन, वो गारमेंट और टेक्सटाइल्स की, तीसरा टूरिज़्म की। सियाम रीप सबसे खासियत है क्योंकि बहुत सारे अच्छे टेंपल हैं, मेन अंकोर वाट, अंकोर टेंपल, और शिवालिंगास, होली रिवर भी मानते हैं। अच्छा, कुछ वाटर, वो अपना क्या कहते हैं, झील काफ़ी सुंदर है, पीसफुल है। अच्छा, एक चीज़ कह रहे हैं, अगर आप एज ए टूरिस्ट आएँ, हार्डली 2 घंटे पे यहाँ पे 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे बॉर्डर आ जाता है थाईलैंड का। उन एरियाज़ में जाना अवॉइड करें। अभी तो सब शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट येट आपको थोड़ा सा बिवेयर और वो रहना है। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो कंबोडिया आने से पहले मैंने आपको बताई थी, थोड़े स्कैम वगैरह जो हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो, वो स्मार्ट क्राइम वर्ल्ड के हर देश में, वर्ल्ड में हर कंट्री में होता है। एवरी कंट्री हैज़ दैट सर्टन थिंग्स। बैटरी खत्म हो गई, चेंज करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं कि 3 सोर्स ऑफ इनकम जैसे मैंने बताया आपको। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकेंड बात फैक्ट्री, टेक्सटाइल और गारमेंट की, तीसरा टूरिज़्म। और जैसे हमने बातें की कि बॉर्डर एरिया मत जाना, अनसेफ है ये वो। अब मैं आपको मेन दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है करने वाला। अभी हमारे ड्राइवर साहब ने हमें बताया, अगर आप देख सकें, ये अंकोर एरिया जिसको हम कहते हैं अंकोर वाट टेम्पल, ये बहुत बड़ा है। इट इज़ अ ह्यूज टेम्पल। और ये देखिए कितना एरिया है इसका, 60 किलोमीटर के वहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। बट एक जो मेन एरिया जिसको बायोन एरिया कहते हैं, और या अंकोर थॉम एरिया जो कहते हैं, जहाँ काफ़ी है, उसकी सारी डिटेल और हिस्ट्री अब हम जानेंगे, करेंगे। प्लस सेकंड चलते हैं, नेक्स्ट दिखाइएगा। ये देखिए, ये एरियाज़ हैं अंकोर के, ब्यूटीफुल क्या है। अच्छा, ये देखिए
स्लीपिंग बुद्धा एंड पैंताइसरी, और वो एक लेक वाला भी दिखाइएगा जो ये मेन कह रहे थे। ये लेक्स वगैरह, नेशनल पार्क जो लेक्स वगैरह, काफ़ी कुछ देखने करने को है। मोस्टली हिस्टोरिकल एंड नेचुरल ने थीम बेसिस पे है। इसके अलावा नाइट मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पब स्ट्रीट भी है, और एक आपके सामने कितना फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है और वो कल्चर भी है। और मुझे जस्ट अभी पता चला यंगस्टर तो आ ही रहा है, जिनकी 50-60 हैं वो भी बहुत आ रहा है, तो वो भी सब कवर करेंगे। और चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। फिर एक बार पहुंच जाएं अपने हॉस्टल, चेक इन वेक इन कर लें, देखें क्या है। भूख भी लग रही है, कुछ मार्केट में निकल के खा लेंगे और देन प्लान बना लेंगे। और बिफोर यहाँ पे इस वीडियो को एंड करूँ और अपना हॉस्टल पहुँचे हम, कि एक जैसे हम जो ज़रूरी बात कर रहे थे कि 25 to 79 को बहुत नुकसान हुआ, और वो हमने भी टूर बुक किया हुआ है, वो दिखाएंगे आपको क्या उनके किलिंग फील्ड्स थे, क्या प्रिजन्स थे, क्या वो दौर आया था। वो जब वक्त आता है वो चीज़ें दिखाते हुए जो बात करने का मज़ा है, वो ऐसे अभी तो छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड और अभी कंफर्म कर लिया गाइड साहब ने भी, हमारी इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल करेक्ट थी कि बिल्कुल अभी शांति है थाईलैंड एंड कंबोडिया में, कुछ भी ऐसा गलत नहीं चल रहा जिसको टूरिस्ट को नुकसान हो। चलिए अब ये काफ़ी लंबी जर्नी है, अराउंड 40 किलोमीटर्स और 45 किलोमीटर्स और है। बढ़िया बस है। मैं तो अभी भी कहूँगा 1 to एशिया। इनका मैंने आपको बोर्ड दिखा दिया, मैं इनका नंबर लेके भी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप आएँ, बुक करें और इनके से जो सर्विसेज लेना चाहें प्राइसेस कंफर्म कर लें, चेक कर लें, और इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, ग्रेट। थैंक यू गाइस। ये कुछ पहली झलक सियाम रीप के, और ये आउटर में है हम अभी, जो मेन टूरिस्टिक एरिया वहाँ अंदर जाएंगे। यहाँ पे सब लोकल्स ही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा। आपको आसपास दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा। थोड़ा बैंकॉक, थोड़ा इंडिया, उनसे ही मिलता जुलता है हम लोग का, ऐसे ही है सब कल्चर वगैरह मिलना जुलना। ये सिर्फ आपके पहली झलक के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। गाड़ियाँ यहाँ भी है। अच्छा, शिनॉक विल में आपसे बात करी थी भाई साहब, इतनी रोल्स रॉयस एक छोटे से शहर में, बेंटले, मेबैक, मज़ा आ गया था देख के गाड़ियाँ। जो कार लवर प्रेमी है भाई, उनके लिए तो वो फिर शहर पैराडाइस है देखने के लिए। क्या फरारीज, क्या लैम्बोर्गिनीज, गज़ब। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब बस वो एरिया आने वाला है, हम सियाम रीप तक पहुंच गए हैं, एंटर करते हैं और फिर देखते हैं। और डाल दो, दिस इज द एंट्री पॉइंट। हम पहुंच गए सियाम रीप रिवर, राइट। There is connection from the Phnom Kuling National Park. Okay, from Phnom Kuling National Park, right? Phnom Kuling National Park. Okay. Yeah, the one with the 1000 Shiva Linga. Okay. And right here, the Royal Palace in Siam Reap. This is the Royal Palace Siam Reap. Plus, the royal family still lives there. Okay. एक चीज़ नोट करी, पुल के उस तरफ और पुल के इस तरफ वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया एकदम ही। कि भाई साहब टूरिस्ट इधर रहो, मॉल लो, खाओ, और जो आम आदमी है या जो सब लेबर है या जो वर्किंग क्लास है, बिजनेसमैन है, वो सब उधर रहो। अब हम शहर के अंदर आ गए हैं, अब देखते हैं आगे नज़ारे। बाहर ही देखो यार आप लोग, थोड़ा सा बढ़िया कैफे बढ़िया बने हुए हैं, देखते हैं। और ओल्ड मार्केट। अच्छा, यार बाइक्स का, टू व्हीलर्स का बहुत ट्रेंड है। हम भी सोच रहे हैं एक आध बाइक ले ले रेंट पे। लगभग $10 रोज़ की मिलती है, प्लस पेट्रोल आपके अपना जितना आप डलवाना चाहो, जितना आप चलाना चाहो। और ये पब कल्चर वगैरह अच्छा है, नाइट लाइफ भी अच्छी है, सुना है पार्टीज भी होती हैं, कोई नाइट क्लब्स भी हैं। अगर हिम्मत रही, मन किया तो वो भी आपको कवर करेंगे। नाइट लाइफ मैंने ताशकंद सीरीज़ में नहीं कवर की थी, क्योंकि यहाँ आके थोड़ा सा करंट ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये शहर अच्छी वाइब दे रहा है। शिनॉक विल से ज़्यादा तो मच बेटर अच्छी वाइब दे रहा है फ़िलहाल। बाकी कैसा हमें ट्रीट करता है, कैसा हॉस्टल एक्सपीरियंस रहता है, और बस सामने आ गया और 2 मिनट में पहुंच गए। अब आप सीधा आपको मैड मंकी हॉस्टल में। लो दोस्तों, पहुंच गए हम मैड मंकी देन हॉस्टल। इनके प्राइवेट रूम्स भी हैं, डॉम्स भी हैं, बना तो ठीक ठाक हुआ है और अच्छा लग रहा है। और चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं, चेक इन करते हैं। हमने एक रिक्वेस्ट डाली थी मेल पे कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिए, हम 2 जने हैं, क्योंकि वैभव जी का प्रोग्राम जैसे आपको बताया बाद में बना। और पूल तो अच्छा लग रहा है यार, और इस टाइम खाली है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, कोई तो अच्छा ओके, डिस्टर्बेंस नहीं दे रहे। चलिए बात करते हैं। हमें एक प्राइवेट रूम जिनके पास हैं हमें दे दीजिए और आपका बहुत थैंक यू होगा। चलिए
बहुत ही बढ़िया, 2 पूल, मेन पूल एंड द एक्टिविटी पूल। ओके, नो फाइन, या चलिए एक बार सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मिलते हैं आपसे। 2 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के, सामान उठा के, सांस चढ़ के आ गए हैं रूम में। बड़ा बेसिक छोटा सा रूम है, एसी है, बड़ा सा बेड है, एक मिरर है। टेक्निकली वैभव जी $35 है एक रात के इस रूम के, और इस शहर में $35-40 में रोज़ का बड़ा अच्छा होटल मिल सकता है। आज यहाँ रुकते हैं और कल अपनी ऑडियंस को एक अच्छा सा $35-40 में होटल दिखाते हैं, होटल ढूंढ के दिखाते हैं कि कैसे बढ़िया मिल सकता है। बड़ा बेसिक छोटा सा वॉशरूम है, पर चलो अब बुक कर लिया है तो एक रात रुकते हैं। टॉवल है, टॉयलेटरीज हम अपनी थोड़ी सी घर से लाए हुए हैं, इनकी भी हैं। चलो अच्छा, चेकआउट टाइम इज़ 12, नो स्वैपिंग बेड्स। चलिए हमारा तो सेक ही है। आइए 2 मिनट सांस लेते हैं। पानी है, नहीं देते, नहीं देंगे, खैर पानी वगैरह अपना लाना पड़ेगा। यहाँ से व्यू। चलिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं यार, भूख बहुत लग रही है, सुबह से ढंग से कुछ नहीं खाया हुआ। वही जो मिलता है, एक आपको ब्रेकफास्ट में बताया था बेसिक, और लगभग 4 बजने वाले हैं और भूख लग रही है ताबड़तोड़। चलिए कुछ खाते हैं और करते हैं आज का दिन शुरू। और ये बना हुआ अंकोर वाट टेम्पल। आइए भाई साहब, अभी वैभव जी से बात करते हंसी की बात मन में आ गई, दोनों जैनी भाई हम, कि जैसे धर्मशालाओं पे हम यात्राओं में जाते हैं और $35 तो खैर किसी धर्मशाला में नहीं लगते होंगे। सामान उठाओ, ऊपर जाओ, खुद रहो, कोई काम है नीचे रिसेप्शन पे बोलो, तो ठीक है यार। अगर डॉम्स में रहोगे तो सस्ता है डेफिनेटली, 1000-1500 रुपये में। पर अगर आप ग्रुप में आ रहे हो 2-3 जने, मैं बार कहूँगा ग्रुप में आ रहे हो तो बिल्कुल मत करो जो सिंगल बैक पैकर यूट्यूबर्स करते हैं। कॉस्ट कटिंग पे वो चलते हैं, और अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए कॉस्ट कटिंग पे। पर अब जैसे हमने गाड़ी पता की, हमें उतना ही खर्चा पड़ा जितना नॉर्मल सिटी बस का था, और सिटी बस जहाँ उतारती वहाँ से फिर हमें ये चचा को पकड़ के टुक टुक करके आना पड़ता। वो डायरेक्टली उतार गया, नंबर दे गया, सब समझा गया, ये टूर इतने का है, एंट्रेंस टिकट इतने की है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। चलो वो तो हमारा इन्फॉर्मेशन हो गया, वो आपको वीडियो में भी दिख जाएगा। अब लंच के लिए चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर लंच पे शूट किया और रात का क्या किया वो आपको अब अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अब अगली बार मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑफिशियल पुनीत जैन नया नाम है, और जय हिंद। इस टाइम तो सब शांत। 1.4 मीटर, लगभग 5 फुट हो गया। ये कुछ नज़ारे अपना सैम रीप के सड़कों के, थोड़ा सा इंटरनल एरिया में है। मेन एरिया इनका पब स्ट्रीट है, नाइट बाज़ार है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, सब वॉकिंग ही है यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट। फ़िलहाल हम निकले हैं इंडियन रेस्टोरेंट जाने के लिए, और भूख लग रही है। इंडियन, अरेबिक, पाकिस्तानी सब मिक्स रेस्टोरेंट है, किसी ने बताया यहाँ पास में ही है, और वहीं चलते हैं। सुना उसका फलाफल बहुत अच्छा है, तारीफ़ कर रहे थे लोग। चलिए चलते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं। इधर लेफ्ट, बीच में मत चलो, या तो ऊपर हो जाओ नीचे हो जाओ यार, ऐसे ही चलाते हैं लोग, एक ब्रेक नहीं लगाते। पेडिस्ट्रियन को रोड क्रॉस करने देने पे मुसीबत कर देते हैं यहाँ तो। बाकी सियाम रीप में देखो कुछ अलग हो तो मुश्किल ही लगता है। लीजिए भाइयों, मैं कोई कंडेम नहीं करना चाहता, आगे देख के, पर ये लो कूड़ा देख लें, और बड़ा वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ कूड़ा फेंकना मना है। ये देख लीजिए, स्मेल, कूड़ा, वेदर एक प्रेम का था भाई साहब। तो ये मत सोचिए कि सारी फॉरेन डेस्टिनेशन बस इंडिया से बाहर निकल जाओ तो इंडिया से अच्छी है, सेम ही हाल है कई जगहों का। तो बस 2-3 चीज़ें एडवांटेज जो बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे यहाँ से, एक तो स्पेशली ख़ास जो दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं हम लोग, वो ये देखिए, साफ़ आसमान, साफ़ हवा। अब यकीन मानिए 10-15 हज़ार स्टेप चल रहे हैं हम रोज़ के, 18,000 स्टेप चल रहे हैं, उतनी थकावट नहीं है। दिल्ली में आप 5-7 हज़ार स्टेप भी चलते हैं ना तो सांस आनी बंद हो जाती है। बस एक मेरी हाथ जोड़ के विनती, भाई पोल्यूशन का कुछ कर दो। आज करोगे तो 2-5-10 साल लगेंगे, आने वाली जनरेशन को हेल्प होगी। मैं भी एक फादर हूँ, मेरा एक बेटा है, मुझे भी चिंता होती है क्या बनेगा, कैसे बनेगा। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। चलो अब आगे चलते हैं। ये आ गया एंग्लो बार एंड रेस्टोरेंट। इसी का सुना है कि बहुत अच्छा है, फलाफल और इंडियन फूड भी है, इसके बाद दाल वाल सब कुछ है। देखते हैं क्या अवेलेबल है। लस्सी तो यहीं से बोर्ड दिख रहा है, चाय, लस्सी, कॉफ़ी, छाछ, फ्रेंडली से रेस्टोरेंट। आगे सोनी रेस्टोरेंट है, वो पाकिस्तानी है, नेपाली।
ये ठीक लग रहा है, यहीं चलते हैं। मसाला पापड़, ब्रेड पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, पानी पूरी, छोले भटूरे, मोमोज, डोसा। ये है एंग्लो बार एंड रेस्टोरेंट, प्रीमियम इंडियन, अरबिक, यूरोपियन कुजीन। बट इंडियन फूड बहुत बढ़िया, और हमारे पाजी का खाना नंबर 1। और पंजाब से हैं, जलंधर से, वैसे एक्स कस्टम में थे, 5 साल से यहाँ रहते हैं। आप जब भी विज़िट करें ज़रूर विज़िट करें, आए। और हमारा बहुत ख्याल रखा, बहुत ही स्वाद खाना खिलाया। चलो अब आगे चलते हैं वापस। शाम हो गई है, सनसेट का टाइम है। और पाजी ने जस्ट अभी हमें बताया कि काफ़ी टूरिस्ट था अभी महीना 1.5 महीना पहले, अब एकदम खाली हो गया। क्योंकि वो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि थाई और कंबोडिया के वॉर की सिचुएशन के कारण बहुत इशू थे, सब भाग गए, इनके स्टाफ मेंबर काफ़ी भाग गए, लाइव सिंगर वगैरह, स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगी होती थी। 4 आवर्स कह रहा है हमारा खुला होता था। और इंडियंस और पंजाबी इंडियंस वैसे ही कम आते हैं, अब आने शुरू हुए हैं। और जैसे ही उनका आना शुरू हुआ, यहाँ पे वॉर शुरू हो गई। चलो कोई गल नहीं, देर है दुरुस्त है, अब शांति हो गई है। यूरोपियन तो वापस भाग गए अब, पर बाकी आए ज़रूर आए। अभी तक तो ठीक लगा ये शहर मुझे। क्वेल इतना अच्छा नहीं लगा था, कोरंग ठीक था, ठीक है अभी तक बढ़िया है। गोवा जैसी वाइब देता है कि लोग स्कूटियाँ ले लेके घूम रहे हैं अपना शाम के टाइम। बढ़िया देखिए वेदर है, हल्की हल्की जनवरी की ठंडक है। ठंडक इन द सेंस प्लेजेंट। मैं हाफ स्लीव टी शर्ट में हूँ और मज़ेदार है वेदर। हमने तसल्ली से अभी 1-1.5 घंटा खाया, खूब खाया। हिम्मत मार के नीचे आ ही गए थे कि अगर लेट जाते या सो जाते तो फिर रात को बहुत लेट अजीब टाइम पे उठते और डिस्टर्ब होते, ना फिर खाने के रहते ना उसके। जैसे हमारे फादर साहब कहते हैं, ना हिंदू रहोगे ना मुसलमान भाई, एक तरफ होकर चला करो। हंसी आ गई मुझे इस बात पे। चलिए अब वापस चलते हैं अपने हॉस्टल, थोड़ा सा 2-3 घंटे आराम करते हैं। 5:15 बज गए हैं, अब 8:30 पौने 9 आराम से उतरेंगे नीचे 9 बजे। क्योंकि जैसे अभी पाई ने हमें बताया है एंग्लो इंडियन वालों ने कि रात का शहर ज़्यादा तगड़ा है और पूरी रात चलता है, 2-3-4 बजे तक पूरी रौनकें हैं। अभी कोई ऐसा बिल्कुल खाली नहीं हुआ ज़बरदस्त कि कुछ काम ही ना हो, पर फिर भी आप समझो पिछले साल से कह रहे 50% 60% टूरिस्ट चला गया ड्यू टू वॉर। अब चलते हैं। और भाई ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है, और कुछ पूछना हो जानना हो जब मर्जी पूछें। चलिए आगे देख के वैभव जी, कोई लाश पड़ी किसी जानवर के, कोई उठाने साफ़ करने वाला नहीं, और हमें कहते हैं सिविक सेंस। लोग हर देश की अपनी समस्याएं, अपनी प्रॉब्लम है, उनको ठीक करना चाहिए, उनका माहौल नहीं बनाना चाहिए। हम खुद ही क्यों ना हो, अपना घर ही क्यों ना हो, अपने आप को ठीक करें, अपना घर साफ़ करें, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। अब चलता हूँ, आराम करता हूँ, अब रात को मिलते हैं आपसे। बाय बाय। अच्छा बाय। चलो दोस्तों, थोड़ा सा आराम करके, और जो रेस्ट हमें बड़ा ज़रूरी चाहिए था, थकावट था करके, अब हम रात के टाइम निकले हैं। सोचा 11-12-1 बजे तक घूमते हैं, देखते हैं। और इनिशियली रात होने के बाद 8-9 बजे के बाद ही हम निकले, ये जगह एकदम डेड हो गई। अब आगे हम पब स्ट्रीट तक जा रहे हैं पैदल चल के, नाइट मार्केट वगैरह आ गई। आपको आगे के नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, बाजार सजा हुआ है। पब्लिक सड़कों से गायब, पब्लिक सड़कों से शायद इसलिए गायब है क्योंकि वो जो वॉर के कारण यूरोपियंस और साउथ अमेरिकन वगैरह जो भाग गए यहाँ से, किसी नहीं आ रहे। साउथ अमेरिकन फिर अवेलेबल टूरिस्ट दिखते हैं उनके, नॉर्थ अमेरिकन, कैनेडियंस और यूरोपियन बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक हमें इंडियन जिनके यहाँ सुबह खाना खाया था दोबारा मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि डर और पैनिक बहुत फैल गया था जब वो मूवमेंट, एक मिलिट्री मूवमेंट स्टार्ट हुई थी यहाँ। अभी शांति है। चलो अब पब स्ट्रीट पहुँचने वाले हैं, आपको यहाँ की फेमस पब स्ट्रीट के नज़ारे दिखाते हैं और देखते हैं हमें क्या दिखता है, मिलता है। तेज़ म्यूज़िक है, कॉपीराइट का इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाऊँगा। जो कर पाऊँगा वो आपको सब दिखाता जाऊँगा, और साउंड म्यूट के लिए माफ़ी हो जाएगी पहले। ये हमने टुक कर ली भैया, और एक अच्छे से कोई रेस्टोरेंट में, यहाँ बहुत शोर था। और आज बिल्कुल भी हमारे, आप देख ही रहे, शाम को हम सो भी गए थे। हम थकावट इतनी है कि हमारी पार्टी करने का बिल्कुल मन नहीं था। भाई को बोला है कि कोई शांति सी जगह को कोई ठीक सा वेज खाना मिल जाए, और देखते हैं जाके कहाँ ले जा रहे हैं, फिर आपको वहाँ की शूट